बच्चों, 10th 5 ईयर प्लान कोई पुराना सरकारी दस्तावेज नहीं था। ये इंडिया का इंडक्टिव प्लानिंग मॉडल था। मतलब सरकार ने सिर्फ रास्ता दिखाया, रोड मैप दिया और प्राइवेट कंपनीज को कहा आइए देश की ग्रोथ में पार्टनर बनिए। ये रिफॉर्म ओरिएंटेड था, जिसमें फोकस सिर्फ पैसा खर्च करने पर नहीं बल्कि काम करने के तरीके को सुधारने पर था। नाउ स्टार्ट द क्लास। Blueprint 10th 5 Year Plan of India 2002 to 2007 Model. The inductive planning model, unlike earlier rigid plans, this model acted as a roadmap. It allowed the government to provide a policy framework while encouraging the private sector to lead growth. The reform-oriented approach, it shifted from a purely investment-centric approach to one focused on governance, institutional reform and efficiency. बच्चों, इस प्लान का मॉडल इंडक्टिव प्लानिंग मॉडल पर आधारित था, जहां सरकार ने सिर्फ रास्ता दिखाया और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका दिया। मॉडल के 4 मेन पिलर्स। फर्स्ट हाई जीडीपी ग्रोथ। पहली बार इंडिया ने 8% ग्रोथ रेट का सपना देखा था। सेकंड, गवर्नेंस रिफॉर्म। इसका मानना था कि बिना सरकार कामकाज सुधारने, करप्शन कम करें, यानी कि विकास नहीं हो सकता। थर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका फोकस सिर्फ पैसे पर नहीं था बल्कि हेल्थ, लिटरेसी और पॉवर्टी पर था। फोर्थ, एग्रीकल्चर फोकस। माना गया है कि जब तक खेत खलियान नहीं बढ़ेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव, डबल द per capita income. The primary goal was to double the per capita income of Indian within the next 10 years. Inclusive growth, to ensure that the benefits of an 8% growth rate reached the poorest sections of society. Human development, prioritizing people's well-being over just industrial number. The big goal, main objective, double the per capita income. प्लान का लक्ष्य था कि अगले 10 साल में हर हिंदुस्तानी की कमाई दुगनी हो जाए। इसके साथ ही ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, इसका मकसद था इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि तरक्की का फ़ायदा गांव-गांव और हर गरीब तक पहुँचे। Explanation, the strategy. The 10th plan recognized that economic growth alone is not enough. It must be accompanied by social development. The strategy involved reducing poverty, aiming to bring down the poverty ratio by 5 percentage point by 2007. Sectoral shift, moving from a heavy reliance on agriculture to a more balanced growth, inclusive services and infrastructure, focused on monitorable targets. For the first time, the plan set specific measurable goals for health, education and the environment rather than just financial outlays. The strategy means explanation. इसकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल पर सॉलिड थी। सरकार ने कहा कि हम सिर्फ जीडीपी के प्राइस नहीं बदलेंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे। पहली बार मॉनिटरेबल टारगेट रखे गए। मतलब सिर्फ सरकार ने ये नहीं बोला कि स्कूल बनाएंगे, बल्कि ये फिक्स किया कि 2003 तक हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। ये एक टारगेट बेस्ड अप्रोच थी। की हाइलाइट्स, जीडीपी टारगेट, set an ambitious target of 8% annual growth. Employment, aim to create 50 million jobs, 10 million per year. Education,
ensuring all children reach primary school by 2003 and complete 5 years of schooling by 2007. Health targets to reduce infant mortality rate IMR to 45 and maternal mortality ratio MMR to 2%, 2 per thousand. Environment increasing forest cover to 25% of the country's area. Social justice reducing the gender gap in literacy and wages by 50%. Major targets, key highlights. फर्स्ट, ग्रोथ 8% का एम्बिशियस टारगेट जो उस वक्त के लिए बहुत बड़ा था. सेकंड, जॉब्स हर साल 1 करोड़ नए रोजगार यानी कि टोटल 50 मिलियन जॉब्स. थर्ड, सोशल चार्ज जेंडर गैप को 50% कम करना यानी कि लड़के लड़कियों की पढ़ाई और तनख्वाह में जो फ़र्क है उसे ख़त्म करना. फोर्थ, हेल्थ IMR इन्फेंट मोरेलिटी को कम करके 45 पर लाना. रिजल्ट, इकोनॉमिक सक्सेस. India achieved an average growth rate of 7.6%, while it missed the 8% target slightly. It was the highest growth rate achieved in any plan period up to that point. Indicator target. GDP growth 8.0%, achieved 7.6%. हालांकि GDP टारगेट 8% से थोड़ा कम रहा यानी कि 7.6%, लेकिन 10th प्लान ने इंडिया की इकोनॉमी की स्पीड बदल दी. इसी प्लान की वजह से इंडिया दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर रहा. द फाइनल रिजल्ट. अब सवाल ये है कि क्या हम कामयाब होंगे. रिज़ल्ट यस. हालांकि हमने 8% टच नहीं किया पर हमने 7.6% अचीव्ड किया. ये उस वक्त तक का इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था. इस प्लान ने इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने की नींव यानी कि फाउंडेशन दी और गरीबी को तेज़ी से कम किया.